یہ صوبے کرناٹک کی کارگزاری ہے۔ 3 چلے کی کل جماعتوں کی تعداد گزشتہ 85 تھی اور اس میں 5 پیدل۔ اس مرتبہ الحمدللہ 126 اور 11 پیدل۔ چلے کی کل جماعتیں گزشتہ 813 تھیں، 85 پیدل تھیں۔ چلے کی کل جماعتیں گزشتہ 813 تھیں، 85 پیدل تھیں۔ اس مرتبہ الحمدللہ 1397 جماعتیں اور اس میں 81 پیدل۔ دیگر صوبوں میں تقاضوں پر بھیجی گئی جماعتیں گزشتہ 185 جس میں 4 ماہ کے 22 اور چلے کے 163 تھی، 19 صوبوں میں گزشتہ گئی تھی۔ اس مرتبہ 279 ہیں جس میں 4 ماہ کی 32 اور چلے کی 257 ہیں۔ 20 صوبوں میں تقاضوں پر ہماری جماعتیں گئی۔ 4 ماہ بیرون کی جماعتیں گزشتہ 7 گئی تھیں۔ اس دوسرے صوبوں میں کتنی گئی جماعت چلے کی؟ دوسرے صوبوں میں چلے کی جماعتیں کتنی گئی؟ وہ سناؤں گے انشاءاللہ۔ نہیں، کتنی گئی تعداد؟ 279۔ آپ کی 1397 جماعتوں میں سے آپ نے 200 ہی جماعتیں دوسرے صوبے میں بھیجی۔ ہمارے ہاں گزشتہ دسمبر سے اور فروری تک ہمارے پورے صوبے میں اجتماعات ہوئے۔ 26 اجتماعات ضلع وار اور شہر کے 4 اجتماع بنگلور کے ہوئے، جس کے لیے ان کی 4 سال بعد یہ ہمارے اجتماع، لاک ڈاؤن کے بعد عمومی اجتماع نہیں ہوا تھا، تو جس کی وجہ سے کئی ہمارے دیہات، بنجر علاقے، اذان نماز نہ ہونے والی بستیاں کافی پھر سے متاثر ہو گئی تھی۔ کئی علاقے ہمارے ایسے ہیں جہاں قادیانی امام بن گئے ہیں، رائے چور وغیرہ اس طرف کے علاقے، پھر سے وہ ایک مرتبہ ختم ہو گیا تھا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھر سے وہ مسئلہ ہوا، تو ہماری پوری اکثر جماعتیں اپنے اپنے ضلعوں میں اور اپنے علاقوں میں چلی ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ آپ کے وہاں پورا صوبہ، پورا ملک آپ کے صوبے میں سب سے زیادہ جماعتیں بھیجتا ہے، اور آپ کے وہاں زیادہ جماعتیں بنتے ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں کہ صوبے میں اور صوبوں میں انشاءاللہ آئندہ اس کا خیال کریں۔ یہ ایک موقع تھا ہمارا کہ 4 سال بعد اجتماع ہو رہے ہیں، تو بنیادی محنت بھی ہونی چاہیے تھی، اور تسلسل سے 3 جماعتیں چلے کی ہر زون میں ڈالتے ہیں، اس ترتیب بنا کر ان کی جماعتیں خود ہی زونوں میں پڑی، جس سے ماشاءاللہ کافی اچھا پورے ضلع کے اجتماعات میں اثر رہا۔ کئی علاقوں میں اذان نماز زندہ ہوئی اور کئی علاقوں میں کام کی بنیادیں پڑیں۔ اس طرح ہمارے ضلع جو کسی وجہ سے 4 سال میں پھر سے کچھ کام میں کمزوری آ گئی تھی، پھر یہ جماعتیں پڑیں تو ماشاءاللہ اضلاع میں کافی تقویت ہوئی، کام پھر سے دوبارہ تازہ ہوا۔ 4 ماہ کی گزشتہ بیرون جماعتیں 7 تھیں، اس مرتبہ کل 10 ہیں۔ 5 دوسرے ملکوں میں گئی، 3 بنگلہ دیش میں گئی، 2 تیار ہیں۔ اور اسی طرح 2 ماہ بیرون ماہ مسورات جماعتیں گزشتہ 8 تھیں، اس مرتبہ 10 ہیں، 6 چلی گئیں، اور اس کے علاوہ 2 بنگلہ دیش اور 2 تیار ہیں۔ ماہ مسورات چلے کی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 19 تھی، اس مرتبہ 14 ہیں۔ یہ چونکہ آخر سال کا وقت ہے، اس لیے چلے کی جماعتیں مسورات کے ساتھ کم چلی۔ اب چھٹیاں اب شروع ہوتی ہیں، ویکیشن ہوتا ہے، تو آئندہ انشاءاللہ اور بھی جماعتیں چلیں گی۔ ماہ مسورات عشرے کی جماعتیں گزشتہ 240 تھیں، اس مرتبہ 107 ہیں۔ ماہ مسورات سہروز جماعتیں یہ وہی یہ امتحانات ہوتے ہیں طلبا کے، تو عورتیں اس عرصے میں نہیں نکل پاتی، پھر وہ سب نکل جاتی ہیں امتحانات کے بعد۔ ہاں، بچوں کو امی جی پڑھاتی ہیں سب کو۔ ماہ مسورات سہروز جماعتیں 1423 تھیں گزشتہ، اس مرتبہ 1379 ہیں۔ سہروزہ جماعتوں کی ماہانہ اوسط گزشتہ 3163، اس مرتبہ 3164۔ 4 ماہ کی جو بیرون بھیجی گئی جماعتیں ہیں، ایک آسٹریلیا گئی، 5 جماعتیں آسٹریلیا گئی، یوگانڈا گئی، فیجی، تھائی لینڈ اور تنزانیہ، اور 2 جماعتیں ماہ مسورات، 3 جماعتیں مردوں کی بنگلہ دیش، اور ماہ مسورات 2 جماعتیں بنگلہ دیش گئیں، تو کل بنگلہ دیش کے لیے 5 جماعتیں گئیں۔ 2 ماہ مسورات جماعتیں ایک عمان اور کرگستان، بحرین، ملیشیا، کینیا اور موریشیس۔ دیگر صوبوں میں جو تقاضوں پر جماعتیں ہماری گئی ہیں ان کی تفصیل: دہلی میں 15 جماعتیں، جموں کو 2 جماعتیں، گجرات 78،
हरियाणा 3, राजस्थान 3, आसाम 6, उत्तराखंड 2, बिहार 5, महाराष्ट्र 62, आंध्रा 46, केरला 3, यूपी 19, वादी 2, ओडिशा 10, हिमाचल 1, पंजाब 9, गोवा 5, नेपाल 1, बरार 1, एमपी 1, तमिलनाडु 15। मां मसरा चिल्ले की जमातें आंध्रा के इलाके में, वहां साहिली पटरी का जो इज्तिमा हुआ उसमें हमारी 4 जमातें काम की उस पटरी पर। बाकी पंजाब में 1, हासपेट में 1, कोलार में 1, मुंबई में 1 और कोलार में 2, मुंबई में 1, सूबे बरार में 1, हावेरी सिंधनूर का इलाका उसमें 1, टाटा नगर जमशेदपुर में इस वक्त जमात काम कर रही है। जाने वाली जमातें इस वक्त हमारी 6 हैं, तैयार हैं 1 अप्रैल से। 1 वादी के लिए, 2 धूलिया, 1 धूलिया, वलसाड़, वानम्बाड़ी, तिरुपति, चित्तूर, दामल चरू। ये 6 के अलावा 6 पर्चे इस वक्त हम लाए हैं। 6 के रुख लेना है। उलमा मदारिस गोया 12 जमातें हमारी अप्रैल में निकलेंगे इस वक्त। साल लगाने वाले उलमा 20 दीगर सूबों में चल रहे हैं। 10 उलमा सूबे में। 15 शाबान से एक जमात उलमा की रवाना हुई। मदारिस के तलबा की 5 जमातें चिल्ले की निकली और 5 अशरे की निकली। साल लगाए हुए उलमा हमारे पास 780 हैं और 4 माह लगाए हुए उलमा 910 हैं। समाज से माजूर ये मदरसों के तलबा आपके पास तो काफी मदरसे हैं, तो 5 ही जमातें चिल्ले की बनी अभी शाबान की छुट्टियों में। जी, इस मरतबा चूंकि शहर के हमारे इज्तिमात में मदारिस के तलबा एग्जाम आगे पीछे करके वो इज्तिमा की मेहनत में तलबा के वक्त लगे, उनको इज्तिमा ही में बुला लिया गया और अब निकले, इसके बाद निकले। अच्छा, समाज से माजूर एक कारगुजारी उसमें लिखने से रह गई थी। एक जमात 4 माह की समाज से माजूरीन की चल रही है इस वक्त। वो हमारे कर्नाटक के धारवाड़, गदग इन इलाकों में ये माजूर हजरात ज्यादा हैं, तो उन इलाकों में 300 से ज्यादा उस इलाके में है और गोवा में तकरीबन 3000 की तादाद बताई गई। तो गोवा में 3000 है, एक जिले में 200-300 इस तरह है हमारा। तो एक जमात 4 माह की तकरीबन उसमें 15 माजूर और 3 मुतरजिमीन की एक जमात चली, जिसमें ये 3-4 अजला में रहकर गोवा के इज्तिमा में रहकर वहां माजूरीन को जोड़ा। बड़ी तादाद में वो साथी शरीक हुए। 8 माजूर 4 महीने के लिए निकले और 3 माजूर चिल्ले के लिए निकले और बाकी उसमें 3 तर्जुमान के साथ उनको जोड़कर एक जमात बनाया। मामसूरात माजूरीन भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फवक्तन से रोजा लगाती हैं। मुतरजिमीन जो माजूरीन की हैं हमारे पास 8 मसूरात हैं, चिल्ला लगाई हुई 5 हैं उसमें। केरला, टोंगी और वादी के तकाजे पर माजूरीन के मुतरजिमीन की जमात पहुंची थी। टोंगी में भी 8 साथी हमारे पहुंचे थे। असरी तलबा 4 माह की एक जमात और 18 साथी, चिल्ले की 6 जमातें और 15 साथी, अशरे की 86 जमातें। दिसंबर में छुट्टियां थी तो अशरे की 86 जमातें, सहरोजा की 609 जमातें और 930 तलबा वक्त लगाए सहरोजा में। शहर बेंगलोर के 4 इज्तिमात में 3800 तलबा शरीक रहे। इंजीनियरिंग के तलबा पर मेहनत। कुल सूबे में हमारे 214 कॉलेजेस, मुस्लिम तलबा 32,627 हैं। तालिबात की दीगर अजला की कुल तादाद नहीं मिल सकी। बेंगलोर में अलबत्ता 4140 तालिबात हैं। फरवरी में इंजीनियरिंग के तलबा का जोड़ हुआ इसी महीने में, तो 83 कॉलेजेस में से 36 कॉलेजेस की शिरकत हुई। इस साल फारिग होने वाले तलबा व तालिबात 1647 हैं। वक्त लगाए हुए तलबा 4 माह के 2 हैं, चिल्ले के 69 हैं, 79 हैं, अशरे के 174 हैं। सूबे में 104 कॉलेजेस में नमाज ज़ोहर होती है। इंजीनियरिंग कॉलेज के 104 कॉलेजेस में नमाज ज़ोहर होती है। 824 तलबा ज़ोहर की नमाज का एहतमाम करते हैं। माहाना वक्त लगाने वाले तलबा 323 हैं। जोड़ में 500 तलबा की शिरकत हुई। 13 तलबा 4 माह लगाए। माहाना वक्त लगाने वाले तलबा सूबे में
1290 हैं। इस जोड़ में बैरून के 867 तलबा शरीक हुए। रेलवे के अहबाब पर मेहनत। चिल्ले की 8 जमातें निकली, सहरोजा की 34 जमातें, मां मसूरात अशरा 1 जमात, सहरोजा की 3 जमातें निकली। रेलवे के इज्तिमा में 250 साथी शरीक हुए। डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के तलबा की कारगुजारी। ये डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेजेस के का हर 6 महीने में एक जोड़ होता है। पूरे सूबे को 8 ब्लॉक्स बनाए हैं और शहर बेंगलुरु के 4 जोन हैं और उसके अलावा चेन्नई को एक जोन बनाया है, हैदराबाद को भी एक जोन बनाया है। तो यहां भी हमारे साथी वहां पहुंचकर मेहनत की तरतीब बनाते हैं। सूबे कर्नाटक में 350 मेडिकल, डेंटल, आयुष, वेटरनरी, फिजियोथेरेपी के कॉलेजेस हैं। कुल तादाद 15,292 है। इसमें से तालिबात 8,644 हैं, तलबा 6,648 हैं। लड़के मेडिकल इंजीनियरिंग में लड़के ज्यादा होते हैं, मेडिकल में लड़कियां ज्यादा होती हैं। जी यहां आ गया। डॉक्टर्स 10,706 हैं। 6 माही जोड़ में 2,170 की शिरकत हुई, जिसमें तलबा 1,788 और डॉक्टर्स 382 थे। मेडिकल हॉस्टल 40 जगह नमाज का एहतमाम होता है। 40 मेडिकल हॉस्टल ऐसे हैं जहां नमाज का एहतमाम होता है। 28 जगह रोजाना तालीम होती है और 25 जगह मुलाकातों की रोजाना की तरतीब बनी है। माहाना 126 तलबा वक्त लगाते हैं। 22 तलबा चिल्ला लगाए हैं। 3 तलबा 4 माह में, 30 तलबा छुट्टियों में वक्त लगाए। मां मसूरत डॉक्टर्स की जमात कॉलेज और हॉस्टल के करीब क़याम करके तालिबात को जोड़कर उनको मेहनत होती है और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता भी इस सिलसिले की कारगुजारी आई कि कई लड़कियां जब उनके करीब उनको हॉस्टल से परमिशन लेकर उनको बिल्कुल हॉस्टल के करीब किसी घर में क़याम करके हमारी बहनें डॉक्टर्स जो लेडी डॉक्टर्स हैं वो खुद उसमें रही, तो वो आई, काफी मुतासिर हुआ। कई लड़कियों ने कहा कि हमें नमाज पढ़े हुए कई साल हो गए, रोजा रखे हुए कई साल हो गए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल भी और इस साल भी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब बनाई गई है कि यहाँ हॉस्टल में जो लड़कियां रहती हैं उनके लिए सहरी और इफ्तारी का इंतजाम कराया गया। जी वार्डन से बात करते हैं, हॉस्टल के वार्डन से बात करते हैं। हॉस्टल के वार्डन से, और लेडी वार्डन भी होती है, जेंट्स भी होते हैं। हमारे डॉक्टर्स हजरात जाके पहले से इत्तला करके परमिशन लेकर उनको, वैसे ये दरमियान का वक्त होता है 3 से 5 तक का, उस वक्त छुट्टी संडे होता है, सैटरडे, तो उस वक्त उनको बाहर आना आसान होता है, तो क्लास टाइम नहीं होता, तो इस वक्त उनको परमिशन लेके ही आते हैं। जी तो इफ्तारी सहरी का वगैरह इंतजाम किया। तो कई लड़कियों के तासुरात ये निकले कि कई साल के बाद हमने रोजा रखा, क्योंकि सहरी का मसला होता है। इफ्तारी के लिए तो उनके किचन इसमें कैंटीन में खाना मिल जाता है, सहरी के लिए मसला होता था, तो इस बहाने से वो रोजा नहीं रख सकती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमारे साथियों ने हर मस्जिद में निज़ाम बनाया कि हर मस्जिद को एक हॉस्टल के साथ जोड़कर, पीजीज के साथ जोड़कर उनके लिए सहरी इफ्तारी का निज़ाम बना। इसी तरह हमारे शहर बेंगलोर में तकरीबन 20,000 रजिस्टर्ड पीजीज हैं, 20,000 हैं, और उसमें से तकरीबन 8,100 को किसी न किसी मस्जिद से जोड़ा गया है। और अभी कोशिश जारी है जितना हो सके उतने की तरतीब बनाए। तो हमारे 15 शाबान जब आता है, शाबान का महीना जैसे ही आता है, पहले हफ्ते में हमारे जिम्मेदार हजरात पूरे शहर बेंगलोर को मंगल के हमारे मशवरे में सबको तरगीब देते हैं। एक तो कुछ छूटे हुए इलाके हैं जहां लेबर कैंप हैं, माजूर मुलाजिमत जो उनकी क़यामगाह होती है, तो उनमें आसाम, बंगाल और इस तरह के दीगर इलाके वाले सब रहते हैं। तो उनमें अक्सर हुफ़ाज भी होते हैं, उलमा भी होते हैं, और वो कचरा वगैरह चुनने में लग जाते हैं। लेबर कैंप में अक्सर यही होते हैं। तो उनको फिर जाकर मुलाकात करके उनको तरतीब देकर उन्हीं में से किसी एक को जब वो पता चलता है, थोड़ी तरगीब देते हैं, तो वो कहता है कि मैं 15 पारे का हाफिज, कोई कहता है मैं सूवम पढ़ के आया, मैं चाहरुम पढ़ के आया, कोई पूरा आलिम होता है, हाँ, आसाम का, बंगाल के इलाकों का।
फिर उन्हीं को तरगीब देकर कुछ तरतीब बनाकर उन्हीं के और कैंप के अंदर मुसल्ले की शक्ल देकर 15 शाबान को सबको जमा करके उनको वहां तरगीब देकर उनको खाना वगैरह खिलाकर अब आने वाले रमजान की तैयारी के लिए उनको वहां मुस्तकिल 5 वक्त की नमाज और तरावी वगैरह का इंतजाम करके तरतीब बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह 400, 500, 600 से ज्यादा हमारे इलाके में बेंगलुरु शहर और अतराफ में इस तरह के छोटे छोटे मुसल्ले बन जाते हैं रमजान मुबारक में। फिर यही मुसल्ले उसके बाद एक तो लेबर कैंप के, दूसरा जहां अपार्टमेंट्स होते हैं, जहां मस्जिद करीब नहीं होती, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में वहां भी एक मुसल्ले की शक्ल देने की तरगीब दी जाती है। जो बेल्ट एरिया है, छोटे हुए इलाके हैं, वहां भी साथियों को पहुंचकर 15 शाबान से पहले तरतीब बनाकर 15 शब बारात में उनको रात में जोड़कर सारी तरगीब देके आने वाले रमजान मुबारक के महीने की तरगीब देकर वहां 5 वक्त की नमाज तरावी इस तरह का निजाम बनता है। और कई एक रमजान के बाद यही मुसल्ले मुस्तकिल बन जाते हैं, एक उसमें भी कई एक मुस्तकिल मस्जिदें बन जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हर साल हमारे शहर बेंगलोर में 100-150 मस्जिदों का इजाफा होता चला जाता है इसी मेहनत की बरकत से। ये शाबान के शुरू में जब तरगीब होती है तो इस वजह से पूरा काम होता है। तो इसमें यह भी एक काम ये होता है कि जिस तरह हमारे बेंगलोर शहर में तो मिनी बेंगलोर भी है, मिनी वर्ल्ड भी है और मिनी इंडिया भी है, पूरे कई मुल्क के लोग भी हैं और पूरा हिंदुस्तान का हर शहरी हमारे इलाके में आईटी के नाम पर किसी और नाम पर सब रहते हैं। तो उनको उनके इलाकों में उनकी सहूलत के लिए उनको शहरी इफ्तारी का निजाम पहुंचाते हैं, डब्बे में पैक करके रात को पूरे हमारे साथी पूरे 30 रातें पूरी रात जागते हैं। तरावी के बाद ये निजाम शुरू होता है, पकवान करते हैं, पैकिंग करते हैं, दूर दूर तक उनके हॉस्टल में उनको जाकर शहरी भी पहुंचाते हैं, इसी तरह इफ्तारी भी पहुंचाते हैं। तो पूरा इस तरह पूरा महीना भर ये काम करते हैं। तो जिसकी वजह से माशाल्लाह कई लोगों को रोजे रखने में आसानी हो गई और कई लोग इस बहाने से दावत के काम से भी करीब हो गए, नमाज भी पढ़ने का एहतमाम कर लिए और लोग हमारे करीब मोहल्लों में मस्जिदों में जुड़ने वाले बन गए। इसमें बैरून के तलबा भी जी, इसमें बैरून के तलबा का भी एहतमाम पहले से हो रहा था, इसमें बैरून के तलबा का भी इसी तरह एहतमाम करते हैं। कई मुल्क के लोग हैं हमारे पास तो उनको भी इनका भी एहतमाम होता है। तमिल अहबाब की कारगुजारी 3 जिले की तमिल अहबाब, हाँ, उनकी 3 चिल्ले की जमातें निकली। चिल्ले की 3 जमातें निकली मस्तूरात के साथ, अशरे की 3 जमातें और सहरोजा 3 जमातें मस्तूरात के साथ। हर महीने इनके सहरोजा 12 जमातें निकलती हैं। आईटी प्रोफेशनल्स 4 माह की 2 जमातें और 4 साथी। एक जमात बांग्लादेश गई और चिल्ले की 12 जमातें और 25 अफराद। सहरोजा में 141 जमातें और 309 अफराद। पहली मर्तबा सहरोजा में 61 अफराद ने वक्त लगाया। मां मस्तूरात आईटी के से मुताल्लिक 10 जोड़े चिल्ले लगाए और अशरे में 6 जमातें 5 जोड़े, सहरोजा 15 जमातें और 21 जोड़े अलग अलग निकले। अभी 2 माह के लिए बैरून के लिए जमात आए हैं, वक्त देना है। पहली मर्तबा सहरोजा में 5 बहनें निकली। बेंगलुरु शहर के पीजीएस की कारगुजारी तो मैंने सुना दी जी। उसी से मुताल्लिक की बात यह है कि हमारे मस्तूरात की हफ्तेवारी इज्तिमाई तालीम जो हमारे पूरे शहर में खुसूसन और कई अजला में भी इस तरह हमारे बड़ों ने तरगीब देकर उसको फिक्र दिलाई कि आम दिनों में तालिबात और मुलाजिम पेशा औरतें इज्तिमा में शरीक नहीं हो सकती, तो उनको हफ्ता और इतवार ये 2 दिन वीकेंड होता है, छुट्टी भी होती है, तो इनमें इनको जोड़ने के लिए एहतमाम के साथ कवायद के साथ अलग घरों में इज्तिमाई तालीम हफ्ता इतवार की तय कराए। तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कई बहनों को यहाँ आकर अपनी जिंदगी के बदलने का जरिया बना और कई बहनें आमाल में जुड़ने वाली बनी, नमाजों का एहतमाम करने वाली बनी। तो उसमें हमारे इलाके में 3674 इज्तिमाई तालीम के घर हैं और उसमें से 704 मकान सिर्फ हफ्ता सनीचर इतवार के लिए होते हैं जिसमें तालिबात शिरकत होती हैं। उसमें से 8988 और तालिबात और मुलाजिम पेशा औरतें जमा होती हैं हर हफ्ता जी। शहर बेंगलुरु और सूबे के हमारे
یہ دونوں چیزیں جو طالبات پر محنت کے لیے ان حضرات نے ترتیب دی، اگر اور صوبے والے بھی اس پر غور کریں تو انشاءاللہ ہمارے صوبے کی طالبات کے لیے نفع بخش ہوگا۔ ایک تو انہوں نے جو ہاسٹل میں طالبات ہے ان کے اکثر صوبے والے پوچھتے ہیں کہ عصری جو تعلیم حاصل کرنے والی بچیاں ہیں ان پر کیا محنت کی جائے، تو یہ دونوں چیزیں اس پر صوبے والے غور کر لیں کہ ایک تو جہاں طالبات پڑھتی ہے ان کا دارالاقامہ ہے، ہاسٹل ہے، اس کے قریب میں مستورات کی جماعت کا قیام کروا کر ان کے ذریعے سے ان ہاسٹل کی بچیوں پر محنت کی ایک شکل سوچی گئی۔ دوسرا، انہوں نے مسجد کے اطراف محلے میں جو بچیاں پڑھتی ہے وہ بچیاں اپنی اسکول کی تعلیمی مشغولی کی وجہ سے محلے کی تعلیم میں شریک نہیں ہو پاتی، تو ان حضرات نے یہ ترتیب دی کہ محلے میں 3-4 حلقے چلتے ہیں مسجد کے اطراف میں، تو ایک تعلیم کا حلقہ ان کی چھٹی کے دن میں رکھا، سنیچر یا اتوار کو، اور اس مسجد سے متعلق جو بچیاں ہیں عصری تعلیم حاصل کرنے والی وہ اس تعلیم کے حلقے میں شریک ہو جاتی ہے، تو اس سے ان بچوں کا تعلق بھی اس دینی حلقے سے ہو جاتا ہے، کام کرنے والی بہنوں سے ہو جاتا ہے۔ ہم نے بھی اپنے صوبے میں ان کے ذریعے سے ہم گئے تھے تو ہم نے بھی دیکھا، ہمارے صوبے میں بھی ہم کو نفع ہوا، تو اور صوبوں والے بھی اس کو دیکھ لیں، دونوں شکل سے ہماری طالبات پر محنت کی کوئی نہ کوئی شکل بن جائے گی، اس لیے اس پر بھی غور فرما لیں اور صوبے والے بھی۔ ہمارے صوبے میں اور ضلع میں دسمبر سے فروری تک الحمدللہ 26 اضلاع میں اجتماعات ہوئے، اور شہر بنگلور میں جنوری کے مہینے میں 4 اجتماعات ہوئے۔ شہر بنگلور کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 جگہ، ایک جگہ پورے بنگلور کو جمع نہیں کیا جا سکتا، تو 4 حصوں میں ان کو تقسیم کر کے وہاں 4 اجتماعات ہوئے، تو تقریباً شرکت شہر کی ہر اجتماع میں 1 لاکھ کے قریب رہی، تو 4 لاکھ کا مجمع ہمارے شہر بنگلور میں چاروں اجتماع میں شامل رہا۔ دیگر اضلاع میں ہمارے 26 اجتماع ہو گئے۔ شہر میسور کا ایک اجتماع ہمارا باقی ہے، وہ رمضان کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ اجتماع سے پہلے ہماری کل 2144 جماعتوں نے کام کیا اپنے علاقوں میں، 2144 جماعتوں نے ہمارے ہاں کام کیا۔ اجتماع سے 4 ماہ کی 50 جماعتیں نکلیں اور چلے کی 419 جماعتیں روانہ ہوئی۔ علماء کی شرکت ان چاروں اجتماع اور پورے صوبے سے متعلق 26 یہ اور 4 شہر کے پورے صوبے میں اجتماعات کے دوران علماء کی مجلس لگتی ہے، طلباء کی بھی ایک مجلس لگتی ہے، تو ان مجالس میں اس طرح کی ترتیب، اور جو ہمارے مختلف زبانوں کے ساتھی ہیں ان کے لیے پورے اجتماع میں مستقل ان کے لیے الگ ایک ٹینٹ لگایا جاتا ہے، تمل والے، تیلگو والے، اسی طرح سماج سے معذورین ان کے لیے بھی ایک الگ ٹینٹ لگا دیا جاتا ہے، پہلے سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے کہ اور وہاں ان کو ہیڈ فون وغیرہ دے کر جو بات تخت سے ہوتی ہے اسی بات کو وہ ترجمہ کرتے ہیں، ترجمے کے الگ الگ پنڈال لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح علماء کی جو شرکت ہوئی وہ 9815 صوبوں میں، ضلعوں میں، اور ہمارے شہر بنگلور میں 4400، تو کل 14215 علماء ہمارے پورے صوبے کے اجتماعات میں بنگلور ملا کر شریک ہوئے۔ عربی مدارس کے طلباء اضلاع میں 4530 اور شہر بنگلور میں 3600، تو کل تعداد 8130۔ عصری طلباء 10495 اضلاع میں اور 4500 بنگلور شہر سے متعلق، تو کل 14995 ہوئے۔ نکاح اضلاع میں 272 ہوئے اور شہر میں 57 نکاح ہوئے، کل 329 نکاح ہوئے۔ مختلف زبان والوں کی شرکت، کنڑ والے 12700 جمع ہوئے اور تیلگو والے 750، تمل والے 1175، آسام کے 1500، بنگال کے 500۔